आपने बताया कि आप एक डांसर बनना चाहते थे। सो जो लोग करेक्ट। आपको बचपन से जानते हैं तो वो आपको समझते होंगे कि आप डांसर बनना चाहते थे। जो अगर आपको एक प्रोफेशनली जानते हैं तो आपको समझ रहे होंगे कि आप एक फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, काफ़ी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके स्टूडेंट्स आपको एक अच्छा टीचर मानते हैं। बट हु इज़ द रियल क्षितिजा मैम? वी वांट टू नो योर स्टोरी मैम। I so happened I understood at the age of like at 8th standard I understood that I'm not made for science and then I absolutely quit the semi-English that we call it over here. We have an option either to learn in Marathi medium or the semi-English like science and maths and English medium. तो फिर डांसिंग को छोड़ के आपने सीए क्यों चूज़ किया? मतलब ये काफ़ी टफ कोर्स है और वो काफ़ी Yeah, ओके। I'm really proud that it got a story of fourth lady chartered accountant from India. फोर्थ लेडी वो भी चार्टर्ड। उनकी डॉटर ने लिखा उनके लिए. शी इज ऑल्सो एन चार्टर्ड अकाउंटेंट. And when I started compiling reading, starting reading the stories, I really got amazed. I was just curious to know the stories from the chartered accountants, and I absolutely got a lot of variety. हे गाइस, वेलकम बैक टू बीएसएल क्रिएशंस। यू आर वाचिंग लेजेंड्स टॉक सीजन 1, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। और आज का ये जो लाइन है ना, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है, आज का ये पॉडकास्ट इस लाइन को डिफाइन करेगा। अभी तक हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे, आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। हमने आपके काफ़ी ज़्यादा आपकी जो क्वेरीज थी उसको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे। आई होप आपको आपकी प्रिपरेशन को लेकर क्लियर पिक्चर मिली होगी। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक ऑथर भी हैं। उन्होंने एक कमाल की बुक लिखी है फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर के। उस बुक का नाम है स्विंग। शी इज़ द फाउंडर ऑफ बी शार्प क्लासेस। प्लीज़ वेलकम सी क्षितिजा मैम। थैंक यू सो मच मैम Thank फॉर you so ज्वाइनिंग। much. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जब आपसे डिस्कशन हो रही थी हमारी इस पॉडकास्ट को प्लान करने से पहले, तो यू आपने बताया कि आप एक डांसर बनना चाहते थे। सो जो लोग Correct. आपको बचपन से जानते हैं तो वो आपको समझते होंगे कि आप डांसर बनना चाहते थे। जो अगर आपको एक प्रोफेशनली जानते हैं तो आपको समझ रहे होंगे कि आप एक फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, काफ़ी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके स्टूडेंट्स आपको एक अच्छा टीचर मानते हैं। बट हु इज़ द रियल क्षितिजा मैम? वी वांट टू नो योर स्टोरी मैम। Okay, so thank you so much, Avinash, for inviting me, first of all, for this podcast. I'm really excited for this and giving me this great opportunity, which one of which have become one of my dream is to motivate as much as student I can for the CA profession. Because, like you said, I never wanted to be a chartered accountant. I always dreamed of becoming a dancer because my parents used to say I'm a good dancer until my 10th standard was like in my brain and mind that I wanted to be a dancer. I was an artistic person. I had all grade A in the all the drawing examinations. ओके। And it so happened I understood at the age of like at 8th standard I understood that I'm not made for science and then I absolutely quit the semi-English that we call it over here. We have an option either to learn in Marathi medium or the semi-English like science and maths and English medium. जी। So in the 8th standard I understand that I don't want to go for science. It is like becoming very heavy for me and I opted for plain Marathi medium. ओके। So मी माझं पूर्ण 9th and 10th standard education मैंने पूरा मराठी मीडियम से किया. And there I understood and like commerce is the one thing that I want to pursue. But then, when I scored 99 marks in 12th standard out of 100, my parents said like, you have to pursue an qualification which will be recognized all over India. And then I got introduced to the CA thing. If you ask me what I am today, I'm still today the same Kshitija who wanted to be a dancer. So I say that by passion, I'm a core lover for the dancer. By profession, I'm CA. By passion, I'm a teacher. By chance, I became an author and I would still love to dance. So even after completing my CA, I keep on dancing. I keep on dancing with my students now whenever I get a chance. ओके। So this real shit has not changed, I would say. It is still the same, doing the multitasking thing, and I'm loving it. I'm loving it. राइट। मैम तो फिर डांसिंग को छोड़ के आपने सीए क्यों चूज़ किया? मतलब ये काफ़ी टफ कोर्स है और वो काफ़ी Yeah. मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये टफ है या क्या है. वो जस्ट पैशनेट अबाउट डूइंग एन अकाउंटिंग एंड ओके। व्हेन आई एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन मुझे से दिखाई दे रहा था कि मेरे बोथ पेरेंट्स मेरे टीचर रह चुके हैं.
एंड जी। मुझे दिखाई दे रहा था दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो बहुत स्ट्रगल करके जीरो से एक अच्छे पोजीशन पे आए, जीरो से एक अच्छे लेवल पे आए. सो आई कुड सी ओनली द मनी दैट दे आर पुटिंग फॉर माई एजुकेशन. सो माई ओनली कोर टारगेट वॉज कि अगर मेरे फीस के लिए, मेरे कोचिंग के लिए एक अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट. सो आई जस्टिफाई एंड आई एब्सोल्युटली वॉज लविंग द अकाउंट्स, नो डाउट अबाउट इट. सो आई थिंक अकाउंट्स कीप मी गोइंग. Okay. द ओनली सोल पर्पज दैट आई हैड was like कि अगर इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 25-30,000 इन माई फीस, तो आई शुड जस्टिफाई फॉर इट. आई वॉज Hmm. नॉट अंडरस्टैंडिंग इफ इट इज hard or like if it is easy for me. I just had a dream that I want to clear it. Okay. But I will not pursue CA even after clearing the foundation. It was like very much, वेरी मच इन माई माइंड. मैं हमेशा कहती थी कि मैं पास भी हो गई, मैं आपको पास होके बता दूंगी, बट मुझे इसके बाद सीए नहीं करना है फॉर श्योर. मैं Okay. कंटिन्यू नहीं करूंगी बिकॉज आई स्टिल वांटेड टू बी एन डांसर. अच्छा। सो वो एक एक फटके में निकलते गया ना, ऐसे होते गया. फिर आई ऑलवेज फाउंड दैट कि ठीक है, हमें हर अटेम्प्ट के बाद ना एक दो महीने मिल जाते हैं, ब्रेक्स हो जाता है. So जी। that time I used to pursue my passion for dancing. I used to join all the classes for dancing, salsa, contemporary. I was basically a Bharatnatyam student. But अच्छा। then I understood कि Bharatnatyam तो मैं classical नहीं pursue कर पाऊंगी. So I started doing the short courses for the dancing. So the only reason that I, continued to pursue my CA course was the money that my parents has put in into my foundation course. That's it. तो दिस इज द ओनली मोटिवेशन टू डू सीए एट दैट टाइम। Yeah, initially it was only motivation, and I think now the student don't have that criteria. अगर आप CA foundation का results आने से पहले ना आपको CA इंटर में रजिस्टर होना पड़ता था. So we used to call it as a provisional registration for CA इंटर. अच्छा। तो रिजल्ट आने से पहले ही आपको इनरोल करना है सो दैट यू बिकम एलिजिबल फॉर आफ्टर 1 ईयर का जो अटेम्प्ट रहेगा उसके लिए. ओके। तो मैं तो कह रही थी फ्रेंड्स को, नहीं मुझे नहीं करना है करके, जबरदस्ती मेरा फॉर्म फिलअप कराया, जबरदस्ती मुझे सी इंटर के डेमो लेक्चर्स में बिठाया. एंड आई लिटरली क्राइड इन फ्रंट ऑफ माय ओके। टीचर. By God's grace, I got a wonderful teacher in my CA inter coaching classes. That is Mrs. Rekha Joshi ma'am from Pune. ओके। एंड आई रियली क्राइड इन फ्रंट ऑफ हर कि मैम मुझे नहीं करना है ये, पता नहीं मेरे दोस्त मुझे लेकर आए, मुझे पता भी नहीं कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी. तो शी कंटिन्यू टू से आप बस बैठो, रिजल्ट आने तक आप बस बैठो. यू एक्चुअली जज वेदर यू आर लविंग दिस सब्जेक्ट्स और नॉट. एंड राइट। actually fall in love of these subjects. I understood the core, the concept, the knowledge that has been there in the core material of a CA course, and I think that kept me, now अब मुझे इसे नहीं छोड़ना, because I always love the challenges in my life. I did. एंड देन आई टुक इट एज एन चैलेंज कि अगर ये इतना टफ है, ये इतना अच्छा है, सब लोग बोलते हैं, तो अब तो मुझे करके बताना है ना. सीए फाउंडेशन में ऐसा था कि मैथ्स मेरा बहुत खराब था. माय पापा हैज बीन द बेस्ट टीचर इन मैथमेटिक्स, scoring the highest marks in his 10th standard in entire the district. And I used to cry for maths. Maths was very bad for me, but the only target I had in foundation was like 40 marks लेकर आना है फाउंडेशन में, राइट। मैथ सब्जेक्ट में. बाकी तो मैं सब सही कर लूंगी, मतलब अकाउंट्स में तो हाईएस्ट अबाउट 65-70 मार्क्स आ जाएंगे. इट डिपेंड ऑन हैपनिंग. लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकल गया, सी इंटर की कोचिंग एडवांस में ज्वाइन किया, उसका फायदा हो गया. एंड आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स. आई थिंक दैट ऑल गिव मी इनटू दिस कोर्स. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं सीए मेरी खुद की एफर्ट्स की वजह से नहीं बनी हूँ सिर्फ, बट आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली. That's what I could become a chartered accountant. ओके। मैम तो सीए समझ में आ गया कि आपने फैमिली के प्रेशर में या फिर आपके काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने Yeah. आपको प्रेशर में बैठा दिया। बट मैम ये ऑथर कैसे, आपने एक बुक लिखी है तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि आप कैसे, ये मोटिवेशन कहाँ से आई? बिकॉज अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो ना, जैसे आप एक ऑथर हो, अपनी अपनी Hmm. स्टोरी बता रहे हो, तो उससे पहले आप एक कमाल के लिसनर Hmm. हो। तो आपने, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई वो बुक को लिखने के पहले? Yeah. One thing that I realize is आज की जो जनरेशन है ना, वो जी। रीड नहीं करना चाहती है. राइट। यू लाइक दिस जनरेशन जिसे हम जेंजी कहते हैं ना, दे आर स्टिल इन द मोबाइल फोन्स. जी। बट वी वेर द लकी वन, हमारे पास दूसरा कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं था. तो मेरे घर पे ऑलमोस्ट मोर देन 200-300 बुक्स वर देयर. सो माय ओके। फादर वाज एन कोर रीडर, माय सिस्टर वाज एन कोर रीडर, एंड लॉट मेनी बुक्स वर देयर इन माय हाउस.
So the only thing that we had for an entertainment after television और टीवी, और वो भी कितना देखोगे, मतलब ऐसा होता राइट था कि टीवी पूरा टाइम कैसे देखोगे. तो राइट in the vacation I used to finish like almost 20-30 books I used to read in the vacation, and I was being coming from the Marathi medium, you know. जी स्टार्टिंग में मैं सब कुछ मराठी नॉवेल्स पढ़ती थी, बट जैसे मैंने कॉमर्स लिया, सीए स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड रीडिंग मोर इन इंग्लिश. एंड आई थिंक यू नो बुक कैसे बना ये तो मुझे खुद नहीं पता है कि ये आइडिया कैसे आया, बट आई टेल यू एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि मुझे कुछ लिखना चाहिए. जी And that moment, so you know, reading was part of my life for from very young age, from my school days. हम्म And I used to read a lot about the chicken and soup. एक सीरीज है, you know, जिसमें बहुत सारी अलग अलग थीम्स पे बुक्स बनाई गई है, रियल लाइफ की स्टोरीज है उसमें, अलग अलग थीम्स पे, मे बी इंडियन वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो कहीं ना कहीं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था शायद से. आई वाज स्पीकिंग, आई क्विट माय जॉब इन 2018. आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011. आफ्टर दैट हम्म आई वाज इनटू कॉर्पोरेट्स टिल 2018. ओके One fine day I realized I'm not made for corporates. I quit my job and I started attending so many seminars that, you know, institute conducts for the chartered accountant. I took my COP in 2018-19 and I started attending the seminars. जी And there I was talking to one of the chartered accountant, and she said, you know, she took almost 8-9 years to become chartered accountant. After that, her daughter got some issues because of which she could not practice. And हम्म there is strike to me, you know, everybody got a different story of becoming a chartered accountant. राइट So why not to compile it? So I think her story, you know, when I was talking to her just over the call for some seminar, I was talking to her over the call, and it just struck me, and I announced it. I made, you know, the vice, the chairperson from the Pune branch that time, CA Ruda Chitale, and she helped me to connect with the different chartered accountants. Being into industry, you know, देखो हम इंडस्ट्री में होते हैं तो हम बाकी सीए से इतना कनेक्ट नहीं होते जितना जी प्रैक्टिस में होते, बिकॉज सीओपी की आर्ट्स कंप्लीट करना जरूरी होता है, राइट. वो जी सेमिनार्स अटेंड करना कंपलसरी होता है, तो वो सब कुछ मेरा पिछले 8 years में छूट गया था. हम्म एंड जैसे मैंने फिर कनेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, दे ऑल ऑफ देम लाइक द आइडिया. एंड आई वुड से, यू नो, इस स्विंग बुक में इट्स नॉट ओनली द story of mine, apart from like me being over there, how I become chartered accountants. Apart from being there, there are 34 CA women stories. ओके I'm really proud that it got a story of fourth lady chartered accountant from India. फोर्थ लेडी वो भी चार्टर्ड उनकी डॉटर ने लिखा उनके लिए. शी इज ऑल्सो एन चार्टर्ड अकाउंटेंट. And when I started compiling reading, starting reading the stories, I really got amazed. You know, I was just curious to know the stories from the chartered accountants, and I absolutely got a lot of variety. More than, you know, 80 people applied for it. Chartered accountants applied for it, and we could only select 35 stories out of it. But they are all amazing. I would say, I know every story got a different angle, different backgrounds from where they have become a chartered accountant. So it's really inspiring, especially in those situations. You know, CSR चल रही है कि हम ups and downs देखते ही है ना. रोलर कोस्टर चल सब सभी के लाइफ में ये ups and downs आते हैं. तो एग्जैक्टली आई थिंक, यू नो, दे आर ऑल बीन कवर्ड इन टू दिस. आप जब भी कोई भी स्टोरी पढ़ोगे आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे दिल की बात बोल रहे, तो मेरे मन की बात बोल रहे हैं. मैम तो 35 स्टोरीज में से कोई अगर एक स्टोरी आप शेयर करना चाहो जिससे पढ़ के आप भी काफ़ी इमोशनल हो गए, जो आपको लगा कि ये, हम्म. जैसे आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ ये वर्थ इट है क्योंकि ये हम्म. कहानी जो हम्म. पढ़ने को मिल रही है, हम्म. क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, काफ़ी सारी स्टोरीज उसमें होगी, मैं आई जस्ट वांट टू रीड दैट बुक एज वेल. Yeah, sure. So, I would definitely brief you a story about CA Vandana Dholia. ओके Okay, so she is a very active member from Borivali. जी And when I came across her story, you know, she is coming from a family background where she was staying with her siblings, 5 siblings, in 10 by 10 का room. ओके And, you know, after 10 by 10 का एक छोटा सा रूम है, जहाँ जहाँ जिस बैकग्राउंड से वो आई है, यू नो, तो एक मुंबई में छोटा सा घर जिसमें 5 सिबलिंग्स और पेरेंट्स रह रहे हैं. And then you know, after like when she came to an graduation level, she understood that there is something called as a CA course. उनके पास फीस भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फीस के पैसे दे पाए.
She started working part time with the chartered accountants, and from there now she's a very successful practicing chartered accountant from Mumbai. I would say she is the core committee members for the Vikasa and Okay. the Western Regional this region as well. So I personally, to me, her story inspired a lot because coming from a very humble background Right. and reaching to an heights and uplifting your family, that what I always believe कि हर एक घर में एक सीए होना ही चाहिए, क्योंकि Exactly. ना एक एक बंदा या एक बंदी जब सीए बनते हैं ना तो वो खुद अकेले नहीं, वो अपनी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट करते हैं, आगे के Right. सारे जनरेशन अपलिफ्ट हो जाती है उनकी वजह से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एक हर एक घर में आ जाए तो आई वुड से दैट नथिंग कैन बी मोर वंडरफुल देन हैविंग अ वन। जैसे हम कहते हैं ना हर घर इन्वेस्टर कह रही है ना सीए रचना रानडे, वैसे हम कहेंगे जी। कि हर घर में एक सीए होना चाहिए, so that financially and the success, the opportunities that CA brings you will be never ending. राइट। एंड मैम इस सीए जर्नी में ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट में, अभी तो आईसीए ने 3 अटेम्प्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने के बाद ना काफ़ी डिप्रेशन का एक फेज़ आ जाता है। आपने ये बुक लिखी है तो आई होप कि Correct. आपको बहुत सारी स्टोरीज मिली होगी जिसमें डिप्रेशन भी एक बड़ा टॉपिक रहा होगा, Yeah, और yeah, काफ़ी कॉमन कॉमन टॉपिक रहा होगा। तो जैसे अगर डिप्रेशन में कोई बंदा जा रहा है correct. मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, तो वो बाहर कैसे आए उससे, उसका प्रोसेस क्या है, अगर आप बताना Hmm. चाहें उसके थ्रू। Yes. So मैं कहूंगी कि हर एक सीए का ना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिप्रेशन इज कहीं ना कहीं तो एक पार्ट एंड पार्सल बन जाता है जब आप इसको हार्ड समझते हो, जब आप इसको एक शॉर्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो, राइट। जी। हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, तो इट हैज आल्सो हैपेंड टू मी आल्सो, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज कि हम डिप्रेशन में हैं। तो जैसे मेरा फाउंडेशन एंड इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, बट फाइनल्स के टाइम पे आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक इन चूजिंग माय कोचिंग क्लासेस। एंड व्हेन द रिजल्ट वाज आउट दैट टाइम कोई पीडीएफ कॉपीज बुक्स के वगैरह अवेलेबल नहीं था, एंड आई वाज इन यूएस। तो रिजल्ट आया था कुछ जुलाई में, एंड माय रिटर्न टिकट्स वेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड ओके। जैसे कि नवंबर में हमेशा अटेम्प्ट रहा करता था, तो मुझे ये पता था कि अगस्त में आने के बाद मैं क्या करूं। मैं ऑलरेडी 2 ग्रुप्स दे चुकी थी, दोनों में बहुत खराब स्कोर्स आए थे, ओके। एंड आई वाज लिटिल कंफ्यूज क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था वहां पे। नो सॉफ्ट कॉपीज, नो यूट्यूब वाज अवेलेबल दैट टाइम। इट लाइक 2007 इंटरनेट कहीं तो जाके इंट्रोड्यूस हुआ था जी। 2007-8 में। 8 में। तो जैसे आप अभी पॉडकास्ट बना रहे हो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है ये जनरेशन को, जी। और पीडीएफ कॉपीज बुक्स की अवेलेबल है। दैट इज द वेरी प्लस पॉइंट दैट यू हैव कि आप कभी भी ओपन करके चलते घूमते फिरते कहीं भी पढ़ सकते हो, बट नहीं था एग्जैक्टली। हमारे टाइम पे। तो आई थिंक व्हेन आई केम बैक आई हैड दैट बैक ऑफ माय माइंड कि मेरा छूट गया है, मेरा इंपॉर्टेंट टाइम चला गया है, और मैं अभी इतने कम टाइम में कैसे पढ़ूं। I already went into depression. I, stopped talking to my friends. I was like sitting in one place. हम्म। मुझे एक छोटा सा ऑफिस था पापा का जो मैं यूज कर रही थी स्टडीज के लिए, जो घर से थोड़ा सा दूर था। तो आई जस्ट यूज टू गो देयर, पूरा दिन मैं कुछ तो करती थी, बीच बीच में मैं ड्राइंग्स करती थी, हम्म। जो मन को आए मैं करती थी, बिकॉज कोई था नहीं कि मुझे आके चेक करे कि मैं क्या कर रही हूँ। बट आई वॉज ऑलरेडी इन टू एन फेज ऑफ डिप्रेशन। जी। And I remember then, when I stopped talking to my friends, they understood and they were already doing good. किसी किसी का एक ग्रुप निकल चुका था, किसी के दोनों भी ग्रुप्स पास हो चुके थे। ओके। तो मैंने जैसे कहा ना कि एक अच्छे दोस्त की आपको जरूरत है ये पूरे जर्नी में ना। आपको कुछ वो दोस्त बना के रखने चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से समझे, बिकॉज कुछ चीजें आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, या एग्जैक्टली। उनको नहीं समझ में आता है कि आपकी ये इस करियर में, ये स्टडी की फेज में वो आपको एग्जैक्टली हेल्प कैसे करे। राइट मैम। Even though they know that you are not able to pass and you're not able to cope up with the syllabus, but they don't know actually how to help you. राइट मैम। राइट। तो आई बिलीव कि मेरे फ्रेंड्स को समझ में आ गया, somebody started sending me the books, द सीक्रेट एक बुक मुझे भेज दिया फ्रेंड ने, मैंने वो रीड करना स्टार्ट किया। ऑलरेडी रीडिंग का बहुत अच्छा शौक था मुझे, तो हम्म। मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया। तो वहां से मैं थोड़ा सा अपलिफ्ट होती गई, आई वुड से कि डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आती गई मैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर few of my friends shared with me the song का लिस्ट, मोटिवेशनल सॉन्ग्स का राइट। लिस्ट मुझे उन्होंने भेजा था कि हर दिन तुम ये सॉन्ग्स, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा दिन कितना भी खराब जाए, तुम्हारा कुछ पढ़ाई ना हो, कुछ ना हो, तुम दिन में जैसे दिन की शुरुआत करो,
ये 10-15 सॉन्ग्स तुम सुन लो, जब भी मन करे तुम सुन दो. So I believe that, like, my friends help me a lot by sending their notes, by sending me the music list, and by sending me the good books that actually I needed that point of time to come out of the depression. तो वैसे ये एक टेम्पररी फेज होता है, बट अपने दोस्तों को पकड़े रखो आप. आपको क्या हो रहा है, आप क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो. एक अच्छे मेंटर होना, एक अच्छे टीचर होना और अच्छे दोस्त होना सीए जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना हो सके आप जो डिस्ट्रैक्शन है ना आपकी लाइफ के, ओके, उसके साथ भी कैसे डील किया जाए इसको समझने की कोशिश करो. हाउ यू जी। कैन बी कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम दोज थिंग्स. बिकॉज क्या होता है ना, डिप्रेशन में आज की जनरेशन में देखती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा टीवी देखना स्टार्ट करेंगे, हम्म। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना स्क्रॉल स्टार्ट करेंगे करेंगे. इंस्टाग्राम रील्स पे। एंड देर इज नो एंड टू इट, देर इज नो एंड टू इट. सो राइट। आई फील कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं. अच्छा म्यूजिक सुनना, हर रोज वॉक करना, राइट। दोस्तों से बातें करना, इसी सेम प्रोफेशन के दोस्तों से भी बातें करना, सेम प्रोफेशन ना होते हुए भी जो दोस्त है उनसे भी बातें करना. एंड राइट। कोई स्पोर्ट्स, कोई हॉबी जो आपको है. जैसे मैंने कहा कि मैं डिप्रेशन में ड्राइंग करती थी, हम्म। तो आई थिंक दैट विल रियली कीप यू टू योर बेसिक्स. जो आपको करना अच्छा लगता है, अगर आप वो करते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं तो आपको अंदर से खुशी होगी. एंड दैट विल अगेन मोटिवेट यू टू कम बैक टू योर स्टडीज, टू योर पर्पस वंस अगेन. जी। अभी आपने बोला कि इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं जब डिप्रेशन का एक फेज आता है, तो आई होप कि वो उस बुक में इसका भी मेंशन होगा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, क्योंकि आज के जैसे हम लोग आज सीए कर रहे हैं, सो आज के प्रोफेशनल कोर्सेज में ना मैम राइट. ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो. वैसे तो सीए कोर्स में बहुत सारे बच्चे मेच्योर होते हैं, पर फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता है. कई बार आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो जिससे आप एक एग्जैक्टली. लूप में फंस जाते हो. तो मैम डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करने का क्या एक, अगर आप 3 गोल्डन रूल्स बता पाओ हमें. यस. फर्स्ट थिंग आई वुड डेफिनेटली से दैट आप पहले डिफाइन करो आपके डिस्ट्रैक्शंस को एंड उनको टाइम बाउंड करो. जी। तो आपको पता है कि आप हाथ में फोन जब लेते हो तो आप 10 मिनट करके आप लेते हो, बट आप आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, राइट. सो जी। ऑलवेज हैव दैट टाइमर्स इन योर फोन. अभी यू वोंट बिलीव, बट ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आपकी जनरेशन के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी हो सकता है एज अ टीचर. राइट। ठीक है, तो अगर मैं भी सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रही हूँ या मैं कुछ देख रही हूँ, मे बी मैं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होंगी, या मैं कुछ और पर्पस से, अच्छे पर्पस से भी मैं अगर देख रही हूँ तो भी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो ही जाती हूँ. मैं राइट। अगर सोचती हूँ कि 10 मिनट्स करना है तो मेरा आधा घंटा हो जाता है. तो व्हाट नाउ डेज यू गेट अ टाइमर्स टू द एप्लीकेशन ना. आप इंस्टाग्राम पे हम्म। 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का टाइमर्स लगा सकते हो. आपके फोन में आप ये टाइमर लगा सकते हो, तो जैसे ही वो राइट। टाइमर बच जाएगा आपको वो ऐप बंद कर देना है. राइट मैम। Secondly, I would say, keep the password of your mobile as hard as possible. जैसे आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा उसका पासवर्ड रख दो कि आप खोलते खोलते परेशान हो जाओ, और इतना टाइम में चलो जाने दो, मैं साइड में रख देता हूँ इसको, राइट. या आप हाथ में लो भी तारीख को और इतना बड़ा पासवर्ड दो, तो आजकल हम लोग जो हाँ थंब वो वगैरह करते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स करते हैं ना, फिंगरप्रिंट हो गया. उसके जगह पे आप नंबर्स और अल्फाबेट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन रखो पासवर्ड का कि आपको लगे नहीं यार छोड़ दो इसको, ये नहीं करना चाहिए. जी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से दैट आप ना अपने माइंड को ट्रेन करो. जितनी चीजें जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकती है ना, वो बोल के किया जा सकता है, राइट. तो फॉर जी। एग्जाम्पल इफ आई से टू माई माइंड कि देखो अभी मेरा ना पढ़ाई का टाइम है, दैट्स व्हाट हैविंग द प्लानर विथ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर राइट. यू आर सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, हमें पता है कि हम प्लानर बनाते बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, राइट या मैम. हम 100% उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. आज अगर हमने सोचा है कि चलो 2 चैप्टर्स खत्म करने, बट हमारा एक ही चैप्टर खत्म होता है, बट एटलीस्ट एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट यू नो अरे आई एम लैकिंग बिहाइंड, ओके, मेरा एक चैप्टर छूट गया है, या राइट. मेरा इतना पार्ट छूट गया, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. तो जी. ये डिस्ट्रैक्शन जो है इससे बाहर आने के लिए आपको अपने माइंड को जो है ना वो ट्रेन करना चाहिए. कि अगर मैंने प्लानर बना लिया और मैंने प्लानर के हिसाब से बोल दिया कि अभी 1 घंटा है ना, वो 1 hour I'm just going to study the accounts, and you हम्म. keep on telling the worries that comes to your mind or the mobile phones that comes in your hand. No, no, no. Okay, this is not the time that I want to watch the phone. जी. This is not the time that I want to worry about something other subjects. If this is the time that I want to study for accounts, I'm going to only study for accounts. Tell you worry, okay, come and knock my door at 7 o'clock. I'm free.
that time, and that worry will never come to you at 7 o'clock. सो अगर आपने अपने कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे आप अगर अपने माइंड को ट्रेन करोगी तो आप अपने आप धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे. जी. एंड बुक्स विल ऑलवेज हेल्प यू, बुक्स विल ऑलवेज हेल्प यू. अगर आपको लगता है ना कि मोबाइल मत देखो, फिर ना अगर आपको कुछ चाहिए ना एंटरटेनिंग, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे पढ़ो जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे. या कुछ ऐसा देखो, संदीप माहेश्वरी है, या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके आप वीडियोस 5 5 10 10 मिनट्स की वीडियोस आप देख सकते हो, उनको आप स्क्रॉल कर सकते हो. सो वो डिस्ट्रैक्शन भी हुआ तो भी वो यू विल फाइंड इट लाइक विल हेल्प यू टू कम बैक टू द पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड. जी. एंड मैम इसमें कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब मैं ऑनलाइन लेक्चर कर रहा हूँ, को बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं सीए हम्म. इंटरमीडिएट में, क्योंकि हम्म. ऑफलाइन बहुत लोगों के हम्म. लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है पुणे में या फिर जयपुर में जाना. तो करेक्ट. उसमें 12 12 घंटे के राइट. लेक्चर्स में ना वो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी आता है. वो आप एक नया टैब खोलते हो, फिर आप कुछ एक एक गाना सुनते हो, आप 5 मिनट का ब्रेक हम्म. लेते हो. वो 5 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे का हो जाता करेक्ट. है, आप मल्टीपल गाने सुनते जाते हो, फिर आप अगर पता ही आपको नहीं किसी चलता. फिल्म का एक गाना पसंद आ गया तो आप पूरी फिल्म देखने लगते हो. तो ये पूरा एक लूप है. तो उस पे आपका यस. क्या टेक है कि मेरा बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन करना क्या चाहिए बंदे को? हम्म. ऑनलाइन करना चाहिए कि हम्म. ऑफलाइन करना चाहिए? देखो अभी अब ऐसा है ना कि मैंने जब मेरा सीए जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास ऑनलाइन तो ऑप्शन था ही नहीं. ठीक है. जी. एंड जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहां से तो मुझे कोचिंग के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता था. ओके. अब मैं खुद सोचती हूँ कि मैं टीचर क्यों बनी, और मैंने जिस एरिया में मैं रहती हूँ मैंने वहां पे कोचिंग क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज वो जो हमने स्ट्रगल किया था ना कि हर दिन 3 घंटे ट्रैवलिंग में गमाओ. हम्म. राइट. और इतना थक के आने के बाद फिर आप मेंटली भी थक जाओगे कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे. द राइट. ओनली रीजन दैट आई स्टार्टेड द कोचिंग इन द एरिया वेर आई स्टे इज कि जो सीए करने वाले बच्चे हैं ना उनको दिक्कत नहीं आए कि उनका ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जाए. दिस वाज द ओनली सिंगल मोटिवेशन ओके फॉर मी टू स्टार्ट द कोचिंग बिजनेस. तो आई वुड जी. डेफिनेटली से कि देखो, ऑनलाइन होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका टाइम सेव हो रहा है. और राइट मैम. आपको आपको टाइम की जरूरत है. अगर सिलेबस वास्ट है, आप आपका देखोगे सी इंटर का सिलेबस, सी फाइनल का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए आपके पास पढ़ाई के लिए. राइट. बट देन चीजों को बैलेंस करना सीखना होगा ना. तो राइट मैम. अगर बैक ऑफ द माइंड आपकी ये है कि ठीक है मुझे आज 2 घंटे मिल जाएंगे, ओके आज मैं पूरा 3 घंटे का मूवी देख लूंगा, कैन आई अफोर्ड टू सेम. अगर मैं आपको को आज आपने अगर 3 घंटे की मूवी देखी है ना, तो आप कल भी 3 घंटे की वापस से एक बार एक मूवी देखो. ऐसे आप 30 डेज करो अंटिल एंड अंटिल योर एग्जाम कम्स. विल योर आंसर बी यस और नो? आपका आंसर क्या रहेगा? नो. नो रहेगा ना. नो. आज अगर आपने 3 घंटे मूवी में गवाए तो आपको पता है कि आप कल नहीं दे सकते हो, परसों 30 डेज तक 3 आवर्स एवरी डे कैन आई वॉच अफोर्ड टू वॉच द मूवी? एब्सोल्युटली नो. डेफिनेटली. एंड योर आंसर इज नो. दैट इज व्हाट यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर माइंड. ठीक है आज 2 घंटा टाइम पास कर लिया ना, ठीक है अभी आगे के 30 डेज मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ. अगर ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आई शुड स्टॉप राइट नाउ. राइट. जब तक मेरी एग्जाम्स नहीं होती, जब तक मेरे प्लान के हिसाब से जो मैंने शेड्यूल किया उसके हिसाब से मैं नहीं पढ़ूंगा, तब तक मुझे नहीं करना है ये सब कुछ. मुझे नहीं दिखना है, टीवी नहीं देखना है. एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड से कि आप लोगों में जाओ. अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, ऑनलाइन इज रियली गुड. बट राइट. अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो ना, तो यू नीड अ मेंटल ब्रेक. एंड मेंटल ब्रेक एंड वो रिफ्रेश जो होना कहते हैं ना हम लोग कि चलो एक अच्छा कुछ तो चेंज चाहिए हमें, कि अगर हमने 7 8 घंटे के लेक्चर्स देख लिए तो हमें चेंज चाहिए. तो जी. डेफिनेटली परस्यू अ हॉबी. अगर ओके. आप 1 घंटा बाहर खेल के आओगे, क्रिकेट खेल के आओगे, बैडमिंटन खेलोगे, दोस्तों के साथ जाके बातें कर कर आओगे, शॉपिंग करके आओगे, घर के काम में हेल्प करोगे पेरेंट्स को ना, तो वो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. यू विल कीप योर सेल्फ फ्रेश एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू बैलेंस द थिंग्स. तो ऑनलाइन ऑफलाइन देखो हर चीज, मोबाइल होना बुरी बात नहीं है, इंटरनेट होना बुरी बात नहीं है. आज हमको पता है राइट. जनरेशन वाइज द थिंग्स विल चेंज राइट. राइट. बट राइट. अगर हमने चीजों को बैलेंस करना सीख लिया ना, तो आई थिंक विल रॉक एवरी एवरीथिंग विल हैव द प्रोज एंड कॉन्स राइट. राइट. राइट तो मैम. अगर हमने अच्छी चीजों को पकड़ के रखा और बुरी चीजों को छोड़ दिया, तो इसका मतलब उन चीज से हम सिर्फ अच्छा ही ले रहे हैं और हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कभी ये दिक्कत नहीं आएगी. राइट मैम. मैम आखिरी सवाल आपसे ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जैसे एक लूप में फंस गए वो, तो एक फ्रस्ट्रेशन में वो बोलते हैं कि काश अगर मैं आईसीआई का प्रेसिडेंट होता ना, तो कुछ चेंजेस मैं भी करता इस कोर्स में जिससे मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा आसान बना सकता.
तो अगर आपको वो अथॉरिटी दी हम्म जाती कि अगर आप आईसीआई के प्रेसिडेंट हो या फिर अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो क्या चेंजेस आप हम्म करना पसंद करते हैं इस कोर्स में, जो आपको लगता है कि डिमांडेड है पर ध्यान नहीं दी जा रही? फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी अभी कुछ है जो मुझे लग रहा है कि चेंज होना चाहिए, जैसे कि रिसेंटली दे हैव कम अप विद दिस 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर, जी। लाइक विच इज मई, सितंबर एंड देन जैन। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पास 2 ही अटेम्प्ट्स हुआ करते थे, एक दिवाली के तुरंत बाद आता था, नवंबर जी। वाज फिक्स, नॉट इवन दिसंबर, इट वाज नवंबर। एंड बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम तो दिवाली में मतलब दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली आफ्टर 4-5 days ऑफ दिवाली विल बी हैविंग द अटेम्प्ट्स। जी। And now they have made it like 3 times in a year. But हम्म। जितना मैं समझ पा रही हूँ ना अभी बच्चों को, या जितनी मेरी बात हो पाती है बच्चों से, आई फाइंड देम मोर कंफ्यूज। सो हम्म। आई वुड डेफिनेटली से नॉट टू हैव द 3 अटेम्प्ट्स इन a year, बिकॉज क्या हो रहा है ना, बच्चे का माइंडसेट पूरा हिल रहा है। राइट जो मैम। ये सोच के आता है ना कि मैं अटेम्प्ट दे देता हूँ, उसको हम्म। लगता है कि अब देखो, अब कभी भी आप एग्जाम्स दो, कभी भी हमें ये 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता है कि हमारा पूरा 100% हो चुका है। राइट। सो एवरी टाइम यू गो फॉर द एग्जाम, हमें हमेशा लगता है नहीं यार कुछ तो छूट गया है और ये ज्यादा अच्छे से कर पाता था। एवरीबडी, वेदर ही इज और शी इज एन AIR और वेदर दे आर और नॉट, द अदर राइट मैम। स्टूडेंट्स हु जस्ट एम टू पास, द द फीलिंग इज ऑलवेज कि नहीं अब तक 100% नहीं हुआ है। और अभी क्या हुआ है कि अगर आपको पता है कि 100% नहीं हुआ, तो आई गॉट अनदर चांस। कहाँ मेरे 6 months कहाँ वेस्ट हो रहे हैं ना। इफ आई हम्म। गो फॉर सितंबर अटेम्प्ट, देन इट्स इजी फॉर मी कि 3 months में थोड़ा सा और ज्यादा कर लूंगा। तो मई अटेम्प्ट बच्चे स्किप कर रहे हैं, फिर सितंबर जा रहे हैं। फिर जी। सितंबर में ऐसा हो रहा है कि दे आर गेटिंग प्रॉब्लम विद देयर ग्रेजुएशन एग्जाम्स, बीकॉम्स की एग्जाम्स आ जाती है, फिर लगता है नहीं यार अभी चलो और 3-4 महीने की तो बात है। हम्म। The time gap between the results and the next attempt has obviously then reduced. Okay, जैसे कि सितंबर का रिजल्ट नवंबर में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं हो रहा है, तो आप सोचो नवंबर से दिसंबर के बीच में जान में तो अटेम्प्ट आ गया, राइट तो मैम। आपके पास वो टाइम भी कम बच गया प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस स्पीकिंग बच्चे ना थोड़ा सा मेंटली हिल गए हैं इसकी वजह से। राइट। एंड आई एम श्योर लाइक इवन इंस्टीट्यूट वुड डेफिनेटली रियलाइज दिस विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि हम्म। इससे फायदा नहीं हो रहा है बच्चों को, इससे नुकसान हो रहा है, इनफैक्ट वो डीमोटिवेट हुए जा रहे हैं। हम्म। अटेम्प्ट्स तो बढ़ा दिए हैं, बट वो क्लैरिटी नहीं आया है उनको ये चीज करने का। अरे आई ऑलवेज से दैट, देखो करिकुलम में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, कंसिडरिंग हाउ द सी प्रोफेशन इज चेंजिंग टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन, राइट। जी। तो वो करिकुलम में लाए गए चेंजेस, AI को इंट्रोड्यूस करना सिलेबस में, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड बट स्टूडेंट शुड हैव दैट माइंडसेट कि अगर मुझे उस पोजीशन पे बैठा दिया, तो ये नहीं होने वाला है कि इजी पेपर आने वाला है, या ये नहीं होने वाला है कि करिकुलम इजी हो जाएगा और वैल्यूलेस हो जाएगा। सो आई ऑलवेज फील दैट कि अगर हम यहाँ पे है ना, तो इंस्टीट्यूट हमेशा यही रहेगा। राइट एंड मैम। इफ यू वांट टू रीच हियर, यू विल ऑलवेज हैव टू, you always have to put in extra efforts to reach here. You can't expect that institute will lower down their values and their quality, एग्जैक्टली। right? और इसलिए हम कहते हैं कि CA toughest course है, but quality wise, the content wise, it will always be on the top. And if you really want to achieve it, you have to raise yourself. You have to increase your capabilities. And if you हम्म। increase your capabilities, you will definitely reach whatever height is the ICF. Once you reach that, there is no go back from here. It's like from my personal experiences. I always said ki coming from Marathi medium background, it was not easy for me even to talk in English, to write in English, हम्म। राइट। तो मुझे काम करना पड़ा ना मेरे ऊपर, तब जाके मैं ये नहीं बोल सकती इंस्टीट्यूट को आप अपना आप खुद को डिग्रेड कर लो क्योंकि मैं मराठी मीडियम से आई। राइट फॉर मैम। मी लाइक इट, कंपटीशन इज ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे खुद को रेस करना पड़ेगा, मुझे खुद की कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, मुझे खुद में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके मैं वहां पे पहुंचूंगी। And second thing, what I found in today's pattern that has been changed over the 20 years. Like I completed in 2000, I started in 2004. Now this is 2025, exactly 20 years back when I started. हम्म। हमारी क्लासेस का टाइमिंग्स ना बहुत कम हुआ करता था, लाइक हाफ डे, लाइक 5 to 6 hours की क्लासेस, वेदर इट इज CA, इंटर और फाउंडेशन। सो वी यूज टू गेट मिनिमम
5 to 6 hours per self study. ओके। तो अब क्या हो रहा है ना कि बच्चे 3-3 4-4 महीने ना सिर्फ क्लासेस कर रहे हैं, एंड राइट व्हेन दे मैम। कम आउट ऑफ द क्लासेस, इफ यू आस्क देम क्या हो गया, सब कुछ पढ़ ली, नहीं क्लासेस खत्म हो गई है, मेरा पढ़ाई होना अभी बाकी है, अब तो मैं शुरुआत करूँ. राइट मैम। That is the biggest gap now I find. राइट। I would always say that attempt is not going to decide your result. राइट मैम। आप वो 3-4 महीने बाद जो अटेम्प्ट दोगे वो नहीं आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो. वो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, 3 घंटे के अंदर आप जो लिख कर आओगे, आप कैसे लिखते हो, आपने जो पढ़ा है वो आप लिख पा रहे हो नहीं, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 3 घंटे का, राइट. राइट मैम। बट वो नहीं डिसाइड करेगा कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो. आज आप क्या कर रहे हो, आज जब आप कोचिंग ले रहे हो तो क्या आप साइमल्टेनियसली उसका रिविजन कर पा रहे हो. देयर इज ओनली 3 keywords that you have to use throughout this, you have to implement, I would say, in fact, that read it, recall it and rewrite it, whether it is CA foundation, inter or whether it is CA final. अगर आप रीड करोगे, उसको तुरंत रिकॉल करोगे, समराइज करोगे, एंड देन यू ट्राई टू राइट इट इमीजिएटली, आप राइट करो, रीराइट करो, रीसॉल्व करो, then the journey will become smoother. Otherwise फिर attempts पे attempt क्योंकि वो जो फर्स्ट रीडिंग होता है ना वही आपने ठीक से नहीं किया. जी। तो कुछ ना, मैं ये कहूंगी कि कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, स्मार्ट स्टडीज की कुछ चीजें होती है वो आपको सीखना पड़ेगा, एंड राइट फ्रॉम सीए फाउंडेशन आप उसको सीखो कि 1 कंप्लीट पेज रीड करने के बाद उसे समराइज कैसे किया जाता है. अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की एडजस्टमेंट्स को कैसे ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट रिविजन के टाइम पे आपको टाइम नहीं गंवाना होगा. तो फर्स्ट राइट। रिविजन हैज टू बी 100% accurate revision. So your summary is ready, and what has to be read in the second and third revision has to be ready in your first reading. So राइट। that is lacking somewhere, just because students are very much behind कि पहले मैं कोचिंग कर लेता हूँ, क्लासेस कर लेता हूँ, फिर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा. ऐसा नहीं है. राइट। आपको पता नहीं होगा, बट जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा सीए इंटर की अटेम्प्ट के टाइम पे मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद आई जस्ट गॉट 2 months एंड आई थॉट कि ग्रुप 1 का पढ़ाई मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगी. सेकेंड मंथ में आई वुड डू स्टडी फॉर द सेकेंड ग्रुप. एंड व्हेन आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडी और द रिविजन, आई वुड से, बिकॉज मेरा तो स्टडी का पैटर्न यही था कि जैसे ही क्लास में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मैं उसी के साथ पढ़ लूंगी, मैं उसी के साथ सारे मेरे होमवर्क्स कंप्लीट कर दूंगी, मॉड्यूल का रीडिंग मेरा उसी के साथ चलेगा. तो आफ्टर 1.5 month आई रियलाइज मेरा ग्रुप 1 का ही पढ़ाई खत्म नहीं हो रहा है. बट मैंने तो दोनों मतलब मैंने तो फॉर्म में दोनों ग्रुप्स अटेम्प्ट करने के लिए फिलअप कर दिया था. तो माय राइट। डैड ओनली सेड मी, ठीक है, अभी फॉर्म तो फिलअप कर दिया, ग्रुप 1 का पढ़ाई कर लो, अच्छे से निकल जाएगा वो, और ग्रुप 2 के पेपर्स ऐसे ही जाके देकर आ जाओ, देखते हैं तुमको बिना पढ़ाई करे क्या आता है. हम्म। मेरे अंदर भी कीड़े बहुत थे, मतलब मुझे एग्जाम्स देना बहुत पसंद है. सब लोग मुझे गालियां देते थे कि तो ऐसी कैसी हो सकती है कि एग्जाम्स देना पसंद है. मुझे लगता था कि यार जितना पढ़ लिया है ना, अभी जाके लिख के आ जाओ बस. राइट। तो मैंने दिया, मतलब मैंने ग्रुप 2 भी दे दिया विदाउट सिंगल, मतलब सिर्फ 24 आवर्स में मैं जितना रिवाइज कर पाई ना, एक एक दिन का गैप होता है ना मेरे पेपर्स के बीच में, हम्म। तो जितना मैं रिवाइज कर पाई उसी की बेसिस पे मैंने जाके पेपर्स दिए, एंड आई पास इन बोथ द ग्रुप्स. गॉट एग्जाम्पशन इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, एंड दोनों भी ग्रुप मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब सी इंटर निकल गया मेरा. तो मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे हो आप, बच्चे बोलते कि हम 1.5-2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें लीव्स नहीं मिल रहा है, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हम्म। और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे दे अभी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट हम दिए जा रहे हैं, तो ये मेरे साथ कैसे हुआ. तो व्हेन राइट। आई एनालाइज दैट, द ओनली थिंग आई अंडरस्टूड इज, जब आप साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते हो, जब आप कोचिंग करते हो, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो उसको साइमल्टेनियसली पढ़ाई करो, डोंट स्किप अ सिंगल डे. अगर आप एक रूल अपने खुद को ठान लेते हो ना कि आज जो मुझे पढ़ाया गया है ना, वो रिवाइज किए बिना, वो रीड किए बिना मैं दूसरे दिन के लेक्चर्स में नहीं बैठूं, मैं बैठ ही नहीं सकता. राइट। It is a self punishment. राइट। If I don't revise whatever been taught to me today in the classes, or whatever I have been doing today, if I don't revise it today, I cannot sit for the next day lectures. राइट। तो अगर आप ये रूल अपने खुद को सेट कर लोगे ना, तो आई एम श्योर मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे. एंड whenever you try, whenever you feel like quit करना है, I would say please read my books me. तो आप क्विट करने के जो भी आपके 100 रीजंस होंगे ना, वो एक रीजन सफिशिएंट है आपको पुश करने के लिए कि नहीं, मुझे करना है.
राइट मैम। 10 चीजें ना हो सकती है, बट एक चीज हाँ है ना आपके पास, वो जो आपका हाँ है कि क्यों मुझे करना है, दैट वाई हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। राइट अगर मैम। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका वाई, कि क्यों आपने शुरुआत की थी इस जर्नी के लिए, क्यों आप करना चाहते हो, अगर आपका वो वाई स्ट्रांग है ना, तो आपको जरूर लीड करेगा और आपको वहां पे पहुंचा के रहेगा जहां पे आप पहुंचना चाहते राइट मैम। हो। That's it, I would say एंड from मैम, my side. 3 अटेम्प्ट्स के जैसे आपने बात करी ना, 3 अटेम्प्ट से एक जो प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट के वजह, अटेम्प्ट अभी सितंबर में आया और हम्म. रिजल्ट और अटेम्प्ट के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का फासला है। तो एग्जैक्टली. जिस बच्चे को पता है कि वो पास नहीं होने वाला ना, वो भी वेट करता है कि हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए, हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं, उसके लिए वो हाँ, मैं 1.5 महीना। पास हो जाऊँ. हाँ एग्जैक्टली, वो 1.5 महीने वेट करता है और 1.5 महीने बाद वो फेल करेक्ट. होता है, और फिर उसके बाद जब करेक्ट. एग्जाम दूसरा, जब जनवरी का अटेम्प्ट है, तो उसके पास 2 महीने बचते हैं, फिर वो लूप बस में फंसता है, सेम फिर वो सेम लूप में थिंग इज फंसता है। हैपनिंग फॉर एवरी एग्जैक्टली मैम। अटेम्प्ट. वो एग्जैक्टली. तो मई दो, आप सितंबर दो, नहीं तो जैन दो, आपके पास 1.5 से 2 महीने के ज्यादा टाइम है ही नहीं. राइट, तो और वो इसलिए ना वो, मल्टीपल। मतलब वो कंफ्यूज ही है, इसलिए अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगी जा रहा है. वो राइट। कंफ्यूज है कि वेट करे या खुद की पढ़ाई करने भी लोगे ना तो भी मन नहीं लगेगा ना आपका, बिकॉज आपका दूसरा माइंड आपको क्या कहते रहेगा, अरे नहीं, हो सकता है शायद, ये हाँ एक ही पेपर खराब गया था, बाकी 3 तो अच्छे गए थे मुझे, तो एग्जैक्टली। शायद वो अच्छा निकल जाएगा, इसमें एग्रीगेशन हो जाएगा या पास आउट हो जाऊंगा, 40 प्लस आ जाएगा, जिसको पता है कि जिसने पहले से पढ़ाई नहीं है. हम्म। ओके, वो श्योर हो सकता है कि नहीं बाबा, ये तो मैंने बस ऐसे ही अटेम्प्ट देने के लिए मैंने दिया था, ये नहीं होने वाला है मेरा, बट मेजोरिटी 99% स्टूडेंट्स, इट वाज मेस फॉर मी. मैंने इतने सारे काउंसलिंग किए हैं ना, मुझे याद है जब ये सितंबर अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने इतने सारे काउंसलिंग किए कि जो स्पेशली बच्चे 12 प्लस सीए भी कर रहे हैं ना, जी। वो तो 12th में उलझे ही रहते हैं मार्च मंथ तक, और फिर वो सोचते हैं कि मई अटेम्प्ट देंगे, फिर वो मई से सीधा सितंबर में जाते हैं, फिर सितंबर में रियलाइज होता है नहीं नहीं अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है, चलो जॉइन ही कर लेता है. तो क्या फायदा हुआ कि अगर आपने 12th के साथ पढ़ाई स्टार्ट किया था ये सोच के कि आपको तुरंत अटेम्प्ट देना, आप जल्दी फाउंडेशन करोगे तो जल्दी इंटर में चले जाओगे, कोई बट मीनिंग वो नहीं हो है। ही नहीं रहा है. मतलब आपने इतने एफर्ट्स लिए, आप 12th स्टैंडर्ड के साथ सीए की पढ़ाई कर रहे थे, एंड देन अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू गिव द अटेम्प्ट्स like which you were expected to give at an early time, right? राइट। तो राइट। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये अटेम्प्ट्स के बीच का गैप है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, नहीं तो अटेम्प्ट एक हटा ही दो जो आप लेकर आए हो, इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे, एक मेंटली पीस भी रहेगा थोड़ा सा कि नहीं ये है, और अगर ये मैंने अभी नहीं किया तो मुझे 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली मैम, और रिजल्ट के बाद वो एक तो दुख आता है बीच में, उसके बाद आप एक हाँ. फेलियर का भी, आप एकदम डाउन से होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो आप पढ़ नहीं पाते, करेक्ट. 15 दिन बर्बाद करते हो। फिर आपको लगता है यार अभी तो मैं दिसंबर में इन कर चुका हूँ, दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, करेक्ट. दिसंबर में इन कर चुका हूँ, करेक्ट. तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, फिर आप अटेम्प्ट स्किप करके में जाते हो, जान स्किप करके में जाओगे। तो दिस इज द राइट. मेजर प्रॉब्लम मैम, 3 अटेम्प्ट्स का ये एक या बहुत बड़ा एंड लूप है। वो मतलब ग्रेजुएशन भी तो चालू ही है ना आपका, तो हाँ ग्रेजुएशन एग्जैक्टली। की एग्जाम्स, उसकी असाइनमेंट्स इन बिटवीन, ये सारी चीजें फिर डिस्टर्ब कर देती हूँ. एग्जैक्टली मैम। फोकस ही नहीं कर पाऊंगी, फोकस ही नहीं कर पाऊंगी अटेम्प्ट पे. एग्जैक्टली। आई होप आप जो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपको आपकी प्रिपरेशन को लेकर के क्लियर पिक्चर मिली होगी। मैम के बुक स्विंग के थ्रू हमने काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। उस या. बुक्स में मल्टीपल स्टोरीज कवर है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। एंड मैम, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि वो बुक कहाँ से परचेज कर सकते हैं, अगर आप डिटेल्स बता पाओ, ये बुक अगर उनको चाहिए। या डेफिनेटली. सो दिस बुक स्विंग विच इज लाइक, हम इसे स्विंग कहते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म है स्टोरीज ऑफ वुमेन इंस्पायरिंग न्यू जनरेशन. So it ओके। is compilation of 35 CA chartered accountant women stories, and you can purchase this from the Flipkart. ओके। In the bio, if you can mention the link, definitely या। that would help them to reach out. मैं जब भी कोई भी फंक्शंस में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी तरफ से बच्चों को ये जरूर पहुंचाऊँ. जी। सो आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, इसका सेकेंड एडिशन भी आ रहा है, एंड विच इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट. ये हमने पब्लिश किया था 2020 में, 8 मार्च, वुमेन्स डे पे पब्लिश किया था हमने ये पुणे में, जी। एंड इसका सेकेंड एडिशन 2026 में आएगा. उसका भी कुछ आइडिया हटके है, सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द सेकेंड एडिशन एज वेल. आई होप तब तक आप फर्स्ट एडिशन को जरूर पढ़ो. जब भी आप लाइफ में लो फील करो, जब भी आपको लगे कि आप क्या कर रहे हो, सीए में आपको लगे कि आपको क्विट करना है, या ये हम बहुत बार कहते हैं कि नहीं अभी ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद हुआ तो ठीक है नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, राइट? तो जब भी आपकी निगेटिव फीलिंग्स आए, आप इसमें से कोई भी एक स्टोरी को उठाओ रैंडमली एंड यू जस्ट रीड इट आउट. आई एम श्योर आप समझोगे कि
आप तो बहुत अच्छे सिचुएशंस में हो, लोग इतने बुरी सिचुएशंस में हो के भी अगर उन्होंने इतने सारे स्ट्रगल्स के साथ ये डिग्री अगर कंप्लीट किया है, ये प्रोफेशन का वो आज एक हिस्सा है, राइट। तो आई एम श्योर लाइक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अपलिफ्ट योरसेल्फ। इस एडिशन की जो स्टोरीज थी हमने मैक्सिमम कवर करने की एक प्रॉपर हमने एक उसका सार आपके सामने रखा है। होपफुली 2026 में जब नया एडिशन आएगा तो मैम के साथ एक और पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा, तब और भी नई स्टोरीज को जानने यस, का श्योर। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड मैम का इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप बुक हमारे इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेस कर सकते हो। एंड इसकी स्टोरीज मैं खुद भी परचेस करने के बाद पढ़ूंगा एंड आपके साथ और भी नई नई स्टोरी शेयर करूंगा वीडियो बना करके, वीडियो के फॉर्मेट में। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहें बीएसएल क्रिएशन के साथ। थैंक यू सो मच सितजा मैम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. Pleasure to be on your podcast, and I wish all the very best. You know, we just try to reach out to as many students, and you're giving us this wonderful platform. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।